Hi, this is Rushad Rana here, and I'm on It's Real Talk podcast for you with Divya Vaid, watching you on this very special episode where I have poured my heart out. And I hope कि आप लोगों को ये episode बहुत ही engaging और entertaining लगे. Hello and welcome to the another episode of It's Real Talk podcast for you. मैं हूँ दिव्या वैद एंड आज का जो एपिसोड है इससे हम सीखेंगे कि कैसे लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना है, कैसे जब आपका जो ड्रीम है उसको फॉलो करने की जो जर्नी है उस पर कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को बैलेंस करके चलना है. टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, अ वेरी डियर फ्रेंड हु इज़ सो हम्बल, सो स्वीट कि जब हम इनसे मिलते हैं, इनसे बात करते हैं तो वो सेलिब्रिटी वाली जो एटीट्यूड है, वाइब है, ये थोड़ा कम देते हैं. ही इज़ सो नेचुरल, सच अ लविंग पर्सन. Let's welcome this very popular face from the iconic TV serial Hip Hip Hooray, and till now he is doing so much of great work. Recently we saw him in again a TV serial Anupama. We saw him in movies like Veer Zara, Mohabbatein. जल्दी से स्वागत करते हैं हमारे बीच रुशाद राणा का. Thank you. Thank you so much. I'm so Thank happy you for the lovely introduction. that you came here और आपने इतने busy schedule से time निकाला for our viewers. Most welcome. Most welcome. Thank you for having me. Thank you. So Rushad, I will start with a very basic question कि आप personal life में इतने sweet, इतने humble, so tell us about you. So I think the sweetness and the humility comes from the fact कि मैं बहुत ही simple middle class family से belong करता हूँ. My father used to work for Larsen and Toubro. Artist भी थे, साथ में paintings भी करते थे, shows भी करते थे. My mother was a teacher, so I don't belong to any affluent business family. तो हमने शुरू से struggles देखी हैं. I have seen how my parents have come up in life. कैसे बचपन में इन्होंने with a lot of difficulties they have given me the best of everything. कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, but at the same time हर चीज़ का वैल्यू समझा, हर चीज़ का वैल्यू जाना. So I think that is the reason why people call me grounded or whatever it is. Having said that, when I initially started in the career, जब मैंने एक्टिंग की शुरुआत की, जब शुरू में बहुत ज़्यादा फेम मिल गई, I wouldn't say कि फेम सर पे चढ़ गया, but एक साथ हिप हिप हुरे के साथ इतना सारा काम बाद में मुझे मिलने लगा कि धीरे धीरे I felt like I started devaluing the work. मतलब मैं एक ऐसे फेज में गुजर रहा था कि मुझे लग रहा था ये मैं क्या कर रहा हूँ. I deserve much better in life. So it is good to be ambitious, but at the same time it is not good to look down upon what you have in your hand. वो कहावत है ना, a bird in hand is better than two in the bush. तो वैसा वाला मेरा हो गया था. अच्छा. So I think with age, with time, I realized कि that was a mistake I was making, and I kind of rebooted myself, and I have become the kind of person I have become now. तो जैसे किसी को कहते हैं कि सक्सेस थोड़ी बहुत सर चढ़ जाती है, तो वो चढ़ी थी आपके भी सक्सेस? नहीं, सक्सेस कभी सर नहीं चढ़ी. How old were you Hip Hip Hooray के टाइम? 19. I was 19 when Hip Hip Hooray happened. Okay. I was 18 when I got my first portfolio made. Okay. एक साल तक मैंने नॉन स्टॉप ऑडिशंस दिए, एड्स के लिए ज्यादातर ऑडिशंस दिए. Okay. शॉर्टलिस्ट होता था, नहीं सिलेक्ट होता था. वो एड्स के साथ आज भी मेरा वही कंटिन्यू है. आई गेट शॉर्टलिस्टेड but I don't get selected. I don't know why. For most of the ads that I audition for. So I wouldn't say कि वो सर चढ़ गया था. I was never arrogant to anyone. I was never rude to anyone. But like I said, वो एक होता है ना कि यार मैं ये कर रहा हूँ, मैं A कर रहा हूँ, but मुझे X चाहिए. It was like that. तो वो वाले फेज से जब आप गुजरते हो, जब आप अपने हाथ में जो काम होता है उसको आप नजरअंदाज करते हो या उसको आप इतना वैल्यू नहीं देते हो, तो आई थिंक देन द यूनिवर्स टीचेस यू अ लेसन, विच इज व्हाट हैपेंड विथ मी आल्सो. एंड देन आई रियलाइज कि भाई वर्क इज वर्शिप, एंड टू जस्ट कीपिंग ऑन वर्किंग इज द बेस्ट मंत्रा फॉर लाइफ. सो क्या आप पहले से ही एक्टर बनना चाहते थे? बिकॉज यू वर 19 years old, तो यू मस्ट बी इन कॉलेज. तो क्या फोकस था आगे लाइफ का कि ट्राई करते हैं, चलो एक होता है कि साइड बाय साइड, बिकॉज होता है मुंबई में कि एक्टिंग में ट्राई कर लेते हैं, तो ये नहीं तो ये.
Yes. तो क्या थे आपके ड्रीम्स? So मेरा एक्चुअली क्या था, when I was in school I wanted to become a lawyer. ओके By the time I went to junior college, I thought मैं copywriting करके literature majors करके copywriting करूँगा, because my dad was in the advertising department, ओके in the copywriting department. So Okay. I always knew मैं कुछ ना कुछ creative करना चाहता हूँ. ओके I definitely knew that I don't want to be an accountant, or I Okay. don't want to be a doctor, or या but acting का कभी सोचा नहीं था. I Okay. never thought it would be a profession for me. ओके But yes, acting was a passion when I was in school. मैं स्कूल के plays करता था, स्कूल के elocution competitions में बहुत भाग लेता था, inter school competitions जीत के आता था स्कूल के लिए. So in that phase I used to realize that I'm very happy when I'm on stage. और जब एक audience है मेरे सामने तो एक अलग तरह की खुशी मुझे मिलती थी. यस Little did I know that that is what is destined for me. I am meant to become an actor. So I got my portfolio made, auditioned endlessly. Well, थोड़े बहुत ads मैंने उस दौरान किए, कई मैंने group shoots किए, because once a coordinator in that point in time told me कि यार group shoots कर ले, at least you Okay. will recover the money of the portfolio. तो group shoot is basically being a junior artist. ओके ओके तो मैंने वैसे भी बहुत सारी मतलब एड्स आप की है background में बैकग्राउंड होते में हो, बैकग्राउंड में. और वो करते करते आई वाज वेरी, मुझे वो उस प्रोसेस में मुझे खुशी नहीं मिल रही थी. मुझे लग रहा था मुझे कैमरा के सामने होना है. आई वांट टू बी द मेन गाय. आई डोंट वांट टू बी समवन इन द बैकग्राउंड. नॉट दैट आई वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन और एनी प्रोफेशन. एक ऐसे ही ग्रुप ऐड करते करते द डायरेक्टर स्पॉटेड मी. ही सेड so what had happened, the backstory जो मुझे पता नहीं था, the main model had already shot for the ad, but the client was not happy with that guy, ओके and the director spotted me and he called me the next day. He took some separate shots of me and I ended up being the main model of the ad. It was for a pen ad. और suddenly मैं कट टू एक महीने बाद मैं एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में खाना खा रहा हूँ, एंड टीवी था वहां पे और मेरी एड आ रही थी, एंड आई सॉ माई सेल्फ एंड आई वाज लाइक, बॉस दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज यही करना है. उसी दौरान हिपे फुरे हैपेंड फॉर मी. आई गॉट सिलेक्टेड इन द ऑडिशन. देन दे डिड अ 15-day थिएटर वर्कशॉप, जिसमें हमें बोला था कि दिस यॉल आर नॉट लॉक्ड, आप लॉक नहीं हुए हो. हम लोग 14 लोगों की कास्ट थी. देयर वर अबाउट 20-25 पीपल हु वर सिलेक्टेड. We were told that there is a possibility after the workshop you might be told that you are not part of the project anymore. So it's a trial. It's a trial. So are you willing to take the risk? I said ठीक है, मतलब मेरा क्या जाता है, what have I got to lose? एंड वो जो 15 दिन की जो थिएटर वर्कशॉप हमको नुपुर अस्थाना जो हमारी डायरेक्टर थी उन्होंने और विनय पाठक ने जो करवाई, दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग, लाइफ ऑल्टरिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज मुझे फॉर्मल कोई भी एक्टिंग की ट्रेनिंग एज सच नहीं है. ओके आई हैव नेवर बीन टू एनी एक्टिंग स्कूल. मैंने जो भी सीखा है हिपे फुरे करते करते सीखा है. लाइक आई कंसिडर हिपे फुरे टू बी माई एक्टिंग स्कूल हर महीने में. और उस वर्कशॉप के दौरान हम सब एक्चुअली इतने अच्छे दोस्त बन गए, बिकॉज ऑफ विच इवन टुडे वी आर ऑल वेरी वेल कनेक्टेड. वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप, वी आर ऑलवेज इन टच. किसी के भी साथ कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, वी ऑलवेज ट्राई टू बी देयर फॉर दैट पर्सन. So bus then Hippe Phure happened. After the workshop I got selected, I got cast as Raghav, and the rest is history. People still know me as Raghav. As character in Hippe Phure. Yeah. In fact मेरी एक दोस्त है, वो तो मुझे रुशाद बुलाती ही नहीं है, वो मुझे राघव ही बुलाती है. And I think it's wonderful because किसने सोचा था कि आप एक शो करेंगे और 26 साल बाद भी लोग उसके बारे में बात करेंगे, लोग आपको उस कैरेक्टर से जानेंगे. So I think I've just been very blessed to have a beginning like that. Yes. So आप बिल्कुल फ्रेशर थे जब आपने 15 days की वर्कशॉप एक्टिंग की सीखी. जी. And now if I ask you to recall कोई एक ऐसी टिप जो आपको याद हो कि मेरी एक्टिंग में मुझे इस टिप ने निखारा, तो वो सबसे पहली चीज आपने एक्टिंग में ऐसी क्या सीखी? So हमें ना हिपे फुरे करते वक्त हमारी डायरेक्टर नूपुर हमेशा बोला करती थी लेस इज मोर. Okay. जो कि आज की स्टाइल ऑफ एक्टिंग है. आज आप कहाँ पे भी कहीं पे भी जाओगे ना, स्पेशली OTT में, what they will expect from you is very natural performances. Like right now we are talking, I am not performing a scene with you,
बट इफ सपोजिंग दिस वाज अ सीन बीइंग शॉट, या तो फिर भी हम ऐसे ही परफॉर्म करते. Yeah. सो वो एक चीज मैंने तब हिप्पे पूरे के टाइम पे हमें सिखाई गई थी, ओके दैट लेस इज मोर. इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा एक्सप्रेशंस हो टू एक्सप्रेस समथिंग. एक छोटा सा लुक भी वो चीज बयान कर सकता है. सो दैट इज वन थिंग आई लर्नड उस टाइम पे. वन अनदर थिंग विच विनय पाठक हैड टॉट अस, बीइंग सच अ रेप्यूटेड थिएटर एक्टर, उन्होंने हमको एक बात सिखाई थी कि जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा एक टेक में आपका शॉट ओके हो जाएगा. देयर विल बी टाइम्स यू विल हैव टू डू इट रिपीटेडली, बट एज एन एक्टर व्हाट यू शुड डू इज इन एवरी टेक try and do something different, try and bring something new to the table, which the director will have a choice के अरे हाँ ये shot मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसके बाद वाला shot जो उसने किया है that he was slightly better in that. So that these are things which I constantly keep in my mind even now when I perform. हमें वो लोग trust exercises करवाते थे. You know what are trust exercises? आमने सामने 2 rows of लोग खड़े रह जाते हैं और अपने हाथ ऐसे बांध लेते हैं, एंड वहां से एक इंसान दौड़ के आता है एंड ही जंप्स ऑन दैट पाइल ऑफ हैंड्स. सो द ट्रस्ट इज कि आप खुद को एयर में फेंक रहे हो, बट आपको ट्रस्ट है कि ये जो 2 लाइन है जिन्होंने हाथ पकड़े वो मुझे संभाल लेंगे, वो मुझे गिरने नहीं देंगे. सो वी हैव डन थिंग्स लाइक दिस, ट्रस्ट एक्सरसाइजेस taught us that that you trust your co-actor. तो ये आपने उस 15 days के वर्कशॉप में किया ये सब सीखा, और फिर वो जो हमने सीखा थ्रू आउट हिप्पे पूरे करते करते भी हम वो अप्लाई करते थे, बिकॉज obviously the makers only had trained us. So when we were shooting those scenes, they would constantly keep reminding us of the same things. तो वो एक दिमाग में ऐसे बैठ गया है कि आज भी मैं जब अपने सीन्स करता हूँ, आज भी मैं जब परफॉर्म करता हूँ, ये चीजें बैक ऑफ द माइंड मेरे हमेशा रहती है. राइट. जैसे कि ना मैंने कई बार ऐसे कुछ लोगों को नोटिस किया है, लाइव इवेंट्स जैसे होते हैं या कुछ स्टेज शोज होते हैं, तो इफ 2 एक्टर्स आर देयर, अगर तो वो ट्रस्ट है दोनों में तो वो एक बहुत सुंदर चीज़ निकल कर आती है. बट समटाइम्स ओवरलैपिंग हो रही है, समटाइम्स ही वांट्स टू प्रूव आई एम गुड, ही वांट्स टू प्रूव आई एम गुड, एंड एज आई एम एन एंकर, तो एंकरिंग में ये चीज़ काफ़ी होती है कि मेरी स्क्रिप्ट सामने वाला ही बोल देगा, तो वही तुम ही ने बोल दिया, मैं क्या बोलूँ. अच्छा, होता है ये सब एंकरिंग में, ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं. तो कभी आपके साथ ऐसा कुछ सीन में या कभी कहीं ऐसा हुआ, और हुआ तो उसको कैसे हैंडल करना है भाई, क्योंकि कैमरा इज ऑन live shows में, because live, see I have not done theater professionally. मैंने लाइफ में एक प्ले प्रोफेशनली किया है जिसके लिए हमने 2 महीने रिहर्सल की, और एक शो में वो प्ले ही बंद हो गया बिकॉज ऑफ व्हाटएवर द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैड अ फॉल आउट, या जो भी हुआ, आई डोंट नो. बट आई डोंट नो हाउ ये लोग, मतलब थिएटर स्टेज पे, लाइव स्टेज पे लोग इसको कैसे संभालते होंगे. आई डोंट नो. दैट्स व्हाई आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर थिएटर एक्टर्स, बिकॉज इनको एक लाइव ऑडियंस के सामने इनको वो हर चीज संभालनी है. वॉट एवर इज थ्रोन एट यू, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट. कई बार मैंने सुना है सामने वाला एक्टर ब्लैंक आउट हो जाता है, वो अपने क्यूज नहीं बोलता है बिकॉज ही इज ब्लैंक्ड आउट, एंड दिस एक्टर हैज टू टेक केयर ऑफ इट. उसको फिर सीन आगे कैच करना है कि इसको क्या हो गया, इसको कैच करना है और उसको शो आगे बढ़ाना है. ही कैन नॉट टेल द ऑडियंस के भाई 2 मिनट जरा इसको ब्रश अप करवा के. हालांकि हमारे लाइन में क्या है, फंबल हुआ, रीटेक हुआ, अच्छा शॉट नहीं हुआ, रीटेक हुआ, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, रीटेक हुआ. सो वी आर दैट वे वेरी स्पॉइल्ड, इफ आई मे से सो. हमें पता है कि अगर कुछ खराब हो गया तो रीटेक होने वाला है. बट हाँ, मैंने ये अपस्टेजिंग की बहुत कहानियां सुनी है कि सामने वाला एक्टर खुद को प्रूव करने के लिए आप पे हावी होता है. बट बिलीव मी व्हेन आई टेल यू दिस, दिव्या, इन माय 26 years ऑफ माय एक्टिंग करियर, touch wood by God's grace, I have gelled beautifully well with my actors. मुझे कभी कोई ऐसा एक्टर नहीं मिला है who has tried to overshine on me. In fact, I have been so blessed to work with actors who, अगर कहीं मैं लैक भी कर रहा हूं तो वो मुझे they try to bring the best out in me. आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा. अनुपमा में मेरा पहला दिन था शूट का. ओके, मेरी एंट्री का सीन था. And for some reason, they had just given me a plain, simple white shirt and denims, and I was supposed to make this धमाकेदार entry in the cabin. और मेरा scene सुधांशु पांडे के साथ था. सुधांशु पांडे, being the main lead of the show,
हाँ, इज सच अ ग्रेशियस मैन, लेट मी टेल यू दैट. उन्होंने कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट को बोला, यार रुशाद कैन नॉट लुक सो प्लेन. हाँ, उसकी एंट्री है शो में, हम्म, एंड कैसा भी कैरेक्टर, आई वाज सपोज्ड टू बी अ मिडिल क्लास गाय, तो वो सोच के शायद उन्होंने मुझे ब्लेजर वगैरह नहीं दिया. हाँ, बट ही वाज लाइक व्हाटएवर इट इज, थोड़ा सा इसको डायनामिक लगना चाहिए. हाँ, ही आस्क्ड द कॉस्ट्यूम पीपल, वो लोग एक ब्लेजर मेरे लिए ले आए. आई ओके, ट्राइड द ब्लेजर ऑन द स्पॉट, द डायरेक्टर सेड इट्स लुकिंग गुड, हाँ, एंड मेरी एंट्री उसमें शूट हुई. ओके, So the point I'm trying to make is that I have always worked with such gracious and such Yeah. generous people that I have never had to face this by हाँ. God's grace. I have been very kind. That's beautiful. That's beautiful. Also, I will ask कि actor tantrums, जैसे आई एम श्योर कि आपके तो है ही नहीं, बट इन दिस इंडस्ट्री और आप इतने लोगों से मिलते हो, जानते हो, इज दैट ट्रू कि इतने एक्टर टैंट्रम्स जितना हम सुनते हैं, हम न्यूज़ में ही सुनते हैं और हम ये सब जो भी पैब्स होते हैं इनके Right. माध्यम से सुनते हैं, तो ये कितना सच है और किस लेवल तक आपको पता है कि यार कहाँ कहाँ तक एक्टर टैंट्रम्स जाते हैं? Actor tantrums जाते हैं. I have seen a lot of people throw their weight around. I have seen a lot of people getting irritated. बट जैसे सुनते हैं हम कि पूरा का पूरा शूट कैंसिल हो जाता है, इज दैट ट्रू? और क्या ये टीवी सीरियल्स में भी होता है? होता है. होता है, होता है. I have seen, I have worked with some actors हाँ. who are very big on TV, and there have been times when I have been on set and हाँ. they have said कि पैकअप हो गया है because the main lead has not come. ये Okay. एक शो में मेरे साथ हुआ है, सिर्फ हाँ. एक शो में मेरे साथ हुआ है. But yeah, Okay. I have worked with a lot of people who get irritable, जो थोड़ा रूडली बात कर लेते हैं स्टाफ के साथ, जो you know who throw their tantrums. I have worked with such people. हाँ. And मेरा क्या होता है कि I don't say anything. Obviously, it is not my place to say anything. जो भी करना है प्रोडक्शन करेगा, Yeah. the director will deal with it. मुझे I never get involved. I've seen a lot of actors who get involved. मैं कभी उस सब में नहीं पड़ता हूँ because वो मेरा काम नहीं है. मैं अपनी शांति रखता हूँ. मुझे जो काम मेरे से होता है बेस्ट, मैं इनफैक्ट इन सच मोमेंट्स आई गेट अ लिटिल एक्स्ट्रा कॉशियस, आई गेट अ लिटिल एक्स्ट्रा अवेयर कि चलो सामने वाला एक्टर अगर प्रोड्यूसर को थोड़ा सा परेशान कर रहा है तो हम हाँ. कैसे उस सिचुएशन में उस प्रोड्यूसर को हेल्प कर सकते हैं, हाँ, थोड़ा स्मूथ बना थोड़ा सकते हैं. स्मूथ बना सकते हैं. तो यस, यू आर राइट, एक्टर टैंट्रम्स इज अ रियलिटी. In TV, in film, I've only heard. I have never seen anything first hand. मैंने अपनी नजरों से नहीं देखा. टीवी में मैंने देखा है. टीवी में मैंने देखा है people being rude, people misbehaving. A lot of the younger generation I have seen. I've also worked with some amazingly professional people like Krishna Kaul, Okay. who played my son in Kumkum Bhagya, who's a Okay. heartthrob. So I have worked with some amazing people like him. I have also worked with some, people who thrown their weight around. I don't want to name anybody. So ठीक है, part of the game. आप क्या कर सकते हैं? Like I said, it's not my place to say anything. कल को उठ के मैं प्रोड्यूसर बनता हूँ और कोई ऐसे बिहेव करेगा तो then I know how I need to deal with them. But being an actor, I don't do anything about it. आपका तो हमें पता है that you are so grounded. There are few freshers I know और कुछ मतलब youngsters हैं जो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं. So कई बार आज की जनरेशन का बच्चों का माइंडसेट ये हो जाता है कि अगर मैं टैंट्रम्स नहीं दिखाऊंगा या दिखाऊंगी तो मेरी वैल्यू नहीं पता लगेगी. So क्या आपको क्या लगता है, क्या थॉट्स हैं आपके इस बारे में? मुझे लगता है ये बिल्कुल ही गलत सोच है. इनफैक्ट मैं कितने एक्टर्स को ये कहते हुए सुनता हूँ कि हमें तो सिखाया गया है हाँ, कि भाई शो ऑफ मतलब थोड़ा अपना वेट दिखाओ, थोड़ा सेट पे लेट जाओ, थोड़ी चिल्लम चल्ली करो. कैसे तुम्हारा 2 बजे का कॉलिंग टाइम है, तुम क्यों 2 बजे आगे 4 बजे आओ? हाँ. सो आई टोटली डिसएग्री, क्योंकि मुझे भी लगता है कि 2 घंटे पहले पहुंच जाओ यार, उससे आपके लिए ही बेटर है. नहीं, 2 घंटे पहले भी मत पहुंचो, बट अपने करेक्ट टाइम पे पहुंचो. अपने आप मेकअप रूम में जाओ, अपनी लाइनें याद करो, अपना मेकअप लगा के कॉस्ट्यूम पहन के आप रेडी रहो. आपको कभी भी बुला सकते हैं. वंस सो व्हेन यू गेट इनटू द रेगुलर शूट पैटर्न, आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है. लोग जानते हैं कि आपका वर्किंग पैटर्न कैसा है. तो व्हाट दे स्टार्ट डूइंग, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे साथ हमेशा होता है दैट वंस अ प्रोडक्शन गेट्स यूज्ड टू माय वे ऑफ वर्किंग,
उनको पता है ये बंदा 10 मिनट पहले आ जाएगा. Yeah. उनको पता है they can depend on the fact that they can start the shoot with me. Yes. अगर बाकी के एक्टर्स आए हो ना आए हो, रेडी मिले ना मिले, रुशाद उनको रेडी मिल जाएगा. हाँ. एंड आई ऑलवेज वांट टू बी दैट एक्टर ऑन विच द प्रोडक्शन हाउस कैन डिपेंड ऑन. तो उसका फायदा ये भी होता है कि यू नो देन दे गेट कंसिडरेट विथ यू ऑल्सो. सो इफ दे नो कि रुशाद पहले सीन में नहीं है तो उसको 9 बजे हम नहीं बुलाएंगे, उसको हम 11 बजे बुलाएंगे. लेट हिम रेस्ट इन द मॉर्निंग एंड देन कम. यू नो, तो एक ये भी फायदा हो जाता है. बट आई वुड लाइक टू टेल ऑल द यंगस्टर्स आउट देयर हु आर बिगिनिंग देयर जर्नी, प्लीज इन सब चीजों को मत बिलीव करें जो भी आपको ये सब बता रहे हैं कि यू हैव टू थ्रो योर टैंट्रम, यू हैव टू. यार द बिगेस्ट एग्जांपल, शाहरुख खान इज द किंग. ही इज स्टिल द रूलिंग गाय. उनके करियर के फेज में भी लास्ट 6-7 साल कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं गए, बट ही केम बैक विद अ बैंग. The reason why I think he came back with a bang and why so many people love him and stand by him is because he is so nice. You will never hear anyone saying that he has thrown a tantrum. या वो shoot छोड़ के चले गए. आज उनकी he has all the rights to just say pack up and walk out. But you will never hear anyone saying that Shah Rukh Khan has done that. That itself proves कि भाई आज वो क्यों रूल कर रहे हैं. Because he's always been a disciplined actor. आज भी लोग मिस्टर बच्चन की पंक्चुअलिटी की मिसाल देते हैं कि वो ऑन द डॉट आते हैं. ही इज ऑलवेज रेडी ऑन टाइम. आई हैव हैड द गुड फॉर्च्यून ऑफ वर्किंग विद पेंटल सर. ही प्लेड माय फादर इन माय लास्ट शो मेहंदी वाला घर. व्हाट डेडिकेशन, व्हाट डिसिप्लिन. मतलब अगर आपको सीखना है तो ऐसे लोगों से सीखिए. प्लीज डोंट लिसन टू पीपल हु आर टेलिंग यू अरे थोड़ा टैंट्रम थ्रो करो, कपड़े आए स्टाइलिश लेकर आई, कपड़े अच्छे नहीं लगे उसके मुंह पे कपड़े मारो. ये सब करके आपको, बिकॉज यू नो टुडे दिव्या देयर इज सो मच कंपटीशन. मैं नहीं तो मेरे पीछे 100 लोग खड़े हैं यार, मुझसे आधे पैसे में काम करने वाले. So the day you start throwing tantrums, you will be chucked out from that production house. And not only that, इतनी छोटी सी हमारी इंडस्ट्री है that word spreads like wildfire. और आजकल क्या हो गया है, किसी को भी कोई भी साइन करता है ना, सबसे पहले रेफरेंसिंग करता है. भाई वी आर अबाउट टू साइन रुशाद राणा, हाउ इज ही. अब जहां उनको रिपोर्ट मिला कि बंदा टैंट्रम थ्रो करता है, लेट आता है, दारू पी के आता है फॉर एग्जाम्पल, गाली गलौज करता है, जो भी है, इमीडिएटली यू विल नॉट इवन बी कंसिडर्ड फॉर दैट. तो ये सारे मतलब रॉन्ग ख्यालात हैं जो भी जिन्होंने भी डाले हैं यंगस्टर्स के दिमाग में. काइंडली इस चीज को फॉलो ना करें. I totally agree. You mentioned about Shah Rukh Khan. So tell us about your experience with SRK. कभी मिले, कैसा इंटरेक्शन हुआ, क्या एक्सपीरियंस? It was the finest experience meeting him, interacting with him on the sets of Mohabbatein. In fact, there was one very, very small little shot that I had with him where he was supposed to say good morning to me because I'm a student. And he could have just said good morning, but he asked me, what's your name? I said, I am Rushad. And he's actually said good morning Rushad in the film. और वो आज भी अगर आप मोहब्बतें देखेंगे, you will get to see that clip where he's calling me by my name. And that just shows what a sweet and gracious man he is. So, you know, the thing is, for me, I have been so fortunate to, right in the beginning of my career, work on a film like Mohabbatein, जहाँ पे सारे दिग्गज लोग थे. They were all legends. यश जी बोल लो, आदित्य चोपड़ा बोल लो, शाहरुख खान, अपना बच्चन सर, अनुपम खेर जी, फराह खान who was doing, you know, who was the choreographer. सब मतलब अपनी फील्ड के एकदम टॉप मोस्ट लोग काम कर रहे थे. मनीष मल्होत्रा had designed our uniforms. So I was right after while I was doing my first serial, I am on the set which is like the biggest film of the year. और आज भी अगर आप देखो तो मोहब्बतें is counted as one of the biggest hits of the industry. So ये I mean इन बड़े लोगों को इतना humble देखकर
हाँ, उनको इतना डिसिप्लिन देखकर आई थिंक आई लर्नड अ लॉट इन द यंगर डेज ऑफ माय लाइफ yeah, एंड आई थिंक वो मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज हुई बिकॉज यू नो दे हाँ, से ना कि जैसे बच्चे के लिए कैसे बोलते हैं कि छोटा बच्चा जब होता है आप कैसे वैल्यूज उसमें इनकलकेट करते हैं हाँ, वैसे ही बच्चा बड़ा होता है वो Right. देख देख के ही बच्चा बड़ा होता है इफ अ हाँ, किड सीज अ लॉट ऑफ फाइटिंग इन द हाउस हाँ, he will grow up to be an aggressive person. He will Hmm. grow up to be someone who's always hmm, chidchada, who's always, you know, wanting to fight with the world. Similarly, in my younger days as an actor, I had the good fortune of being on the biggest set that could be in that point in time. hmm, And वही इन लोगों को देखकर खास करके शाहरुख खान I've spoken about him and his humility even before. hmm, इन लोगों को देख के मैंने सीखा कि यार दिस इज द रीजन व्हाई दे बिकम सो बिग yes, यू नो इसीलिए वो वहां है इसीलिए हाँ, आज तक लोग उनको पूछते हैं इसीलिए आज तक लोग उनके साथ काम करने के लिए मरते हैं हाँ. सो यू नो दैट इज द रीजन Yeah, I also heard somewhere कि शाहरुख was saying कि मुझे काम करना बहुत पसंद है, मतलब मैं खाली नहीं बैठ सकता, या सुबह उठ जाता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे काम करना है. या So that love towards work and respect towards work Respect towards is very work. important. यस Rushad, we loved your work in movies, in serials, but there are times जहाँ पर हर किसी का ग्राफ ऊपर नीचे होता है. राइट सो जब आपका कभी लाइफ में डाउनफॉल आता है या आया पास्ट में, सो उसको आप कैसे कोप अप करते हैं, कैसे करते आए हैं, कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हो आप? सो आई थिंक द ओनली फेज इन माई करियर जब मैं 3 साल काम के बिना बैठा था दैट इज 3 दैट साल? 3 साल दैट वाज Okay. सेल्फ कॉज्ड एक्चुअली बिकॉज आई हैड साइंड अ फिल्म एट दैट पॉइंट इन टाइम कॉल्ड ये फासले ओके, which was a small independent kind of a film ओके, जिसमें पहले मुझे बोला गया था कि मेरे 5-8-10 दिन का काम है सो यू नो वी डिड दैट स्केड्यूल दिल्ली जाके हमने वो किया the director liked my work a lot and he said कि I am going to rewrite the climax of the film and I'm going to make you like the main lead of the film. It was actually a father and Okay. daughter relationship based film. ओके, तो उसमें as such कोई main lead लड़का नहीं था but Okay. after shooting with me he said that no I'm going to write more scenes for you I'm going to make you like you know a real important the lead of the film apart Okay. from the father and the daughter the father was being played by Mr. Anupam Kher ओके, the daughter was being played by Tina Desai. So उस फिल्म को करते करते then you know because of this he said कि now I don't want you to do any TV. now मुझे लगा था ठीक है 5-6 महीने में फिल्म खत्म हो जाएगी and then we'll see अगर ये फिल्म निकल जाती है तो मे बी आई माइट नॉट नीड टू डू टीवी बट इस फिल्म को बनने में 3 साल लग गए बनने में रिलीज होने में 3 साल लग गए दे डिडंट हैव एनी मनी टू रिलीज द फिल्म तो बड़े ही बिना होर्डिंग्स के बिना किसी पब्लिसिटी के उन्होंने पिक्चर रिलीज कर दी आई वॉज हार्ट ब्रोकन बिकॉज एक तो 3 साल आप काम के बिना बैठे हो आई हैड फिनिश्ड ऑफ ऑल माई सेविंग्स इन दोज 3 years. You know how difficult it is. ऊपर से they told me I'm going to be the lead of the film, but didn't even put my face on the poster, which was very disheartening. You know, which was demeaning actually. कि यहाँ एक बंदा 3 साल आपके लिए रुक के बैठा है. You don't even have, and you've told him you are the face of my film, you're the lead of my film, and you don't put him on the hoardings. So I was heartbroken in that phase. मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था. But you know, before the film released, I had started taking up TV work because I was like, भाई और मैं नहीं रुक सकता. And I'm glad I did that because वरना वो डिप्रेशन मुझे और भी हिट करता. And in those 3 years that I didn't do any work, I actually got a lot into spirituality, into religion. I used to go to our fire temple. I'm a Parsi, so we have the fire temple where we go and worship. I started going there. I got very deep into prayers. So I think मुझे उस फेज ने मुझे मॉनिटरीली कुछ नहीं दिया लेकिन स्पिरिचुअली मुझे बहुत कुछ मिला उस फेज में और आई थिंक जो एक शांति आई ना मेरे अंदर एक कामनेस आई एक ठहराव आया वो उस फेज में आया. सो आई थिंक दैट इज व्हाट हेल्प्ड मी द मोस्ट to get out of that phase and of course the support of my parents. Never once have they you know sunnaud me or told me कि यार ये
देख अब तेरी वजह से ये Yeah. हुआ वो हुआ. Never once have they told me. They were always there by my side. So I think that was the most, that was the best part Yeah. for me. You are the only son? I'm the only child. Only child. Wow, lovely. Okay. So आपने spirituality की बात करी. So would you like to share any experience और हमारा youth especially, मैं मतलब थोड़ा उस लैंग्वेज में बोलती हूँ कि भटक रहा है, तो Yeah. व्हाट डू यू हैव टू से कि कितनी इम्पोर्टेंट है, कितना ग्राउंडेड रखती है स्पिरिचुअलिटी. तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस वेयर यू वर लाइक टोटली लॉस्ट और आपको लगा कि नहीं मुझे इसकी वजह से, एक कोई ऐसा इंसिडेंट या एक्सपीरियंस कुछ शेयर करोगे? ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स है. इनफैक्ट इवन टुडे आई विल टेल यू दिव्या, हमारे फील्ड में रिजेक्शंस हर दिन मिलते हैं. आई ऑडिशन फॉर ऑलमोस्ट 4 to 5 प्रोजेक्ट्स एवरी वीक. Okay. और उसमें से अगर एक आध वर्कआउट हो गया तो हो गया, बट अदरवाइज दे आर ऑल रिजेक्शंस. They, you only see messages on your phone where they say, sorry, it was lovely auditioning you, but sorry, it did not work out. You may release your dates and all that. तो आज की तारीख में भी इतना रिजेक्शन देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है. एंड आई थिंक इट इज ओनली my prayers, my meditation, which keeps me calm, which keeps me strong, which keeps me going. और ये बात मैंने अपने पापा से सीखी है. He is a very, very religious guy. He is a very spiritual, more than spiritual, he's a more religious kind of a person. I am more spiritual now. So my father always says that एक spiritual backup, एक spiritual grounding होना बहुत जरूरी है. We always talk of having savings in our account, है ना? हमेशा हमें सिखाया जाता है कि भाई सेविंग्स होने चाहिए, because you never know कल को उठ के if a rainy day comes you need to get into your savings. और मैंने तो 3 साल अपने उन सेविंग्स के उस पे निकाले हैं. So I know the importance of that. So this spiritual bank which you build is, I think, the savings which is very, very required for you. And I think जब वो नहीं होता है ना, आपके अंदर एक बहुत बड़ा खालीपन होता है, बहुत बड़ा वैक्यूम होता है. वो वैक्यूम क्या है वो बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं. एंड टू फिल दैट वैक्यूम देन यू रिसॉर्ट टू रॉन्ग थिंग्स लाइक alcohol, drugs, you know, random hooking up with people. उनको लगता है बस अब यही जिंदगी है. और फिर कुछ लोग इसी वजह से तो कुछ लोग डिप्रेस होके सुसाइड भी कमिट करते हैं, because they don't know what to do with their lives. So I feel that spiritual grounding, the spiritual backup is very, very important in your life. It gives you the strength to go through anything and everything in your life. Whatever life throws at you, I think it is like वो एक आपके लिए एक ढाल बन जाता है, you know, to kind of protect yourself, to protect your family from whatever bad is going to come to you. You get some power, मतलब कहीं से कुछ एक आपको आ जाता है. Of course, power, faith, you know, आज faith बहुत important है, because faith ना हो, आपको अगर खुद में belief नहीं है, आपको किसी universal power में belief नहीं है, तो I think you are a very lonely person, you know. What's the meditation technique you do? You mentioned कि meditation करता हूँ. So for me, so there are a couple of chants in our prayers. I don't sit with my prayer book and go through that. मैं करता था in that phase when I became very religious. But from religion, I gradually moved towards spirituality. और वो भी मुझे किसी ने बोला नहीं, मुझे अंदर ही अंदर वो एक it was an inner voice which took me on this path that I am. So in our religion, we have a couple of very important chants. छोटी-छोटी prayers है, which you can sit at any point in time and anywhere, और आप ध्यान करके वो chant कर सकते हो. So I make it a point to do that. ऐसा कोई ये नहीं है, फिक्स नहीं है, कई बार दिनों तक नहीं होता है. I end up chanting more when I'm sitting in my makeup room, because हमें waiting बहुत करना होता है. कई बार 2-2 scenes, 3-3 scenes में आपकी requirement नहीं होती है. समझो आपने सुबह का पहला scene कर लिया, then they will tell you now you are required after lunch. तो of course आज आप Netflix देख लेते हो, book पढ़ लेते हो, सब कुछ करते हो, but before that I make it a point that I sit for at least 5 to 10 minutes. I do my chanting. I feel very calm. I feel very grounded. And then I proceed with whatever else I have to do, be it chilling with other actors, या फिर कुछ देखना है, या पढ़ना है, या जो भी है. So yeah, this is what I follow. And another thing which I really believe in is that it is very important to spend time in nature.
जो आजकल लोग भूल गए हैं. और by spending time in nature, I feel what I mean is that like I go for my morning walks, I go for my evening strolls. That is very important for me. And in that period, I don't have my earpods. I don't have music going on. I'm just listening to nature. That's also meditation. I am listening to, you know, the sounds of the birds. पत्ते अगर हिल रहे हैं हवा के साथ. So, you know, all these kind of sounds which we people have now forgotten to hear them. Yes. Because everywhere you go, people have their things inside the ears. Yes. तो आप सुबह का वॉक भी कर रहे हो, इतनी खूबसूरत बर्ड्स चर्पिंग कर रही है, लेकिन आपको पता नहीं है, बिकॉज यू हैव दोज थिंग्स इन योर ईयर्स. So that is also a very, very strong form of meditation for me. I mean, it just completely relaxes me, refreshes me, rejuvenates me. And obviously it's good for your health also. Lovely. How important it is कि आपकी लाइफ में जब एक अच्छा पार्टनर आता है तो आपकी लाइफ कैसे खिल जाती है. सो आई हैव सीन यू कि आप यू आर लाइक ग्रोइंग एंड ग्लोइंग व्हेन यू हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ विद यू. थैंक यू. सो टेल अस कि कैसा एक्सपीरियंस होता है कि जब हमें एक अच्छा पार्टनर नहीं होता लाइफ में और जब अच्छा पार्टनर होता है तो कैसे लाइफ पूरी शिफ्ट होती है. और मैंने तो दोनों साइड्स देखे हैं. सो लाइक दे से अ गुड वुमन कैन make you or break you. I have seen the break you part of it. Yes. And now I'm seeing the make you part of it. Yeah. So I don't want to go into a lot of details about my earlier marriage, but yes, it was a bad marriage. It broke me and my parents emotionally, mentally, physically, financially. In every way, it broke us. It shattered my self-confidence. I started looking down upon my industry because मुझे constantly वो बोलते रहते थे कि ये क्या फील्ड है, what is acting. अच्छा आज तुम यंग हो, तुम्हारे पास काम है, कल को उठ के कौन तुमको काम देगा. बट आपका काम ही वही है स्टार्टिंग से. you are but I don't know what issues they had or whatever. They could never relate to my industry. They could not understand. So इतनी ज्यादा ब्रेन वॉशिंग हुई थी मेरी कि मैं I started hating my work. तो आपने कभी ऐसा सोचा कि मैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए मैं कुछ और करना शुरू कर दूं? मैंने एक्चुअली जॉब इंटरव्यूज देना शुरू कर दिया था. I had started giving job interviews. And when I used to go for those interviews, people used to tell me, listen, you are a good actor. What are you doing here? Interview क्यों देने आए हो? Acting करो. You are good. You are growing. So you did everything to save your relationship. I did whatever was in the best of my capacity. तो एक मैंने वो वाला रिश्ता देख लिया जिसने मुझे टोटली इट ब्रोक मी, क्रश्ड मी. फिर बहुत टाइम लगा टू गेट माय कॉन्फिडेंस बैक. मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो हौसला दिया, वो कॉन्फिडेंस दिया, वो गाइडेंस दी. दे वर द वंस हु टोल्ड मी दैट यू आर इन द राइट प्लेस. बिकॉज अगर हमें लगता कि यू आर नॉट इन द राइट प्रोफेशन, जब तूने टीनेज डेज में शुरू किया था तभी तुझे बोल देते. वी वुड हैव नॉट अलाउड यू टू ग्रो इन दिस प्रोफेशन, बट वी सॉ that you are good at what you do. There is scope of growth and you were doing well right from your first project. तो हम तुम्हें क्यों मना करते, और अगर मना करना होता तो तभी मना कर देते. So my parents were my strongest pillars in that phase. And now, like you mentioned, I have a beautiful soulmate, Ketki, in my life. दिखता है, मतलब समटाइम्स यू नो बोलते हैं ना कि इवन फोटोज भी बात करती है, पिक्चर्स बात करती है, तो इट शोज ऑन योर फेस, ऑन हर फेस कि कितने कंपैटिबल हैं दोनों, कितने अच्छे लग रहे हैं. सो गॉड ब्लेस यू बोथ. थैंक यू. बहुत अच्छा लगता है ये देख के. थैंक यू. प्लीज कंटिन्यू. या हाँ, सो नाउ दैट केतकी इज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, शी इज आई वुड से एक बहुत बड़ी शांति आ गई है मेरे लाइफ में. ट्रू. देयर इज अ लॉट ऑफ कामनेस बिकॉज यू नो हमारी इंडस्ट्री इतनी वॉलेटाइल है. कभी काम होता है, कभी नहीं होता है. काम जब होता भी है, देयर आर सम डेज व्हिच आर बैड डेज एट वर्क. समबडी माइट हैव नॉट स्पोकन टू यू वेरी प्रॉपरली, या चीजें आपके हिसाब से नहीं हुई होती है. एंड व्हेन यू गो बैक होम, all you need is a smiling face. And I have that smiling face every day when I go back home. You know, I have that warm hug waiting for me when I go back home. I have someone asking me जब पैकअप होता है कि what should I eat and keep
what are you going to eat today? हाँ. और 4 options दिए जाते हैं because she knows that I am a foodie. I love food. So, so these are the small things, the small Yes. kind of, care that she takes of me, हाँ. which is all that I need. मतलब I have never believed in grand gestures. Yeah. I have never believed in a very filmy kind of a romantic love story. But it's these small things that your partner does for you, which keeps you going, which keeps you Yes. happy, which keeps you peaceful. And the best part is that she's from our industry. Okay. She's from my industry. हाँ, So she knows. understands. She understands the profession. She understands कि इस profession के साथ क्या-क्या shortcomings है, उसको मुझे कैसे संभालना है, उसको मुझे कैसे motivate करना है. She guides me beautifully. Earlier I would, मैं मतलब किसी को भी trust कर लेता था. हाँ. किसी के भी event में चला जाता था. कोई भी प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग करने कभी भी चला जाता था. शी इज मेड मी वाइज. शी इज मेड मी रियलाइज माई वर्थ. शी इज मेड मी वाइज. दैट्स व्हाई आई कंडक्ट माई सेल्फ अ लिटिल डिफरेंटली नाउ. और आई थिंक वो बहुत जरूरी था मेरी लाइफ में, बिकॉज मुझे कोई ऐसे गाइड करने वाला नहीं था. बिकॉज मॉम एंड डैड आर नॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री. वो लोग इमोशनली मुझे गाइड करते थे, मेंटली मुझे गाइड करते थे, बट इंडस्ट्री को लेके दे कुड नॉट गाइड मी बिकॉज दे डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ द इंडस्ट्री. Right. So yeah, I mean, I'm glad, I'm blessed that she's a part of my life now. We are very happy for you. रुशाद, ये जो चीज़ आपने बोली ना कि आपके साथ हुई है, ट्रस्ट मी, और आपने भी देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा है. Correct. Like it's a lot. Yes. Even in my family, I have this case. So ये ना एक फैमिली के लिए भी ट्रॉमा हो जाता है. Of जिसके course. साथ हुआ है उसके लिए तो है ही. Of course. लेकिन आसपास के लोग सबके लिए एक ट्रॉमा हो जाता है कि यार ये क्या हो गया. Right. So would you like to give few points और कुछ सजेशन देना चाहोगे किसी ऐसे इंसान को लाइक जो बिल्कुल शैटर्ड हो चुका है? एंड आई टेल यू रुशाद कि सुसाइड तक के लोगों को थॉट्स आते हैं. सो हाउ टू कीप मोटिवेटिंग, कैसे अपने आप को निकाले इस चीज़ से? स्पेशली इफ यू थिंक कि आपके आसपास कोई नहीं है, लाइक यू वर ब्लेस्ड दैट आपके पेरेंट्स आपके साथ Right. रहे, Right. बट देयर आर फ्यू पीपल जो अकेले होते हैं, तो Right. आप क्या उनको सजेस्ट करोगे कैसे उस ट्रॉमा से आए? See, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि उस इंसान को अकेले नहीं रहना चाहिए. Okay, Okay. if you don't have your family with हाँ. you, if you don't have your parents with you, reach out to your friends. ओके. टॉक टू देम. मैंने कई लोगों को देखा है डिप्रेशन में उनको अकेले रहना पसंद है. वो हाँ. बोलते हैं कि नहीं, मैं खुद से डील कर लूंगा, लेकिन वो हाँ. गलत है. यू रीच आउट टू पीपल. लाइक आई ऑलवेज बिलीव इन टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स. अगर मुझे कोई चीज खलती है या अगर किसी चीज ने मुझे अपसेट किया है, आई ऑलवेज टॉक टू माई फ्रेंड्स. और कई बार आपको लगता है कि आपको वहां से कोई ऐसा इजी सोल्यूशन मिल जाता है टू योर प्रॉब्लम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ये है. सेकेंडली, आपका मन हल्का हो जाता है. वन थिंग आई स्ट्रांगली बिलीव इन कि आपको कोई भी बैगेज अपने अंदर नहीं रखना चाहिए. यू जस्ट हैव टू लेट इट आउट. बात करो लोगों से, अकेले मत रहो. बिकॉज बहुत ज्यादा आप अकेले रहते हैं तो तभी आप सुसाइडल टेंडेंसीज आप पे हावी होती है. राइट. दैट्स बिकॉज यू आर अलोन. यू आर नॉट टॉकिंग टू एनीवन. यू आर नॉट डीलिंग विद एनीवन. टॉक टू पीपल. ट्राई एंड बी आउट ऑफ द हाउस, आई वुड से. Try and be out of the house. Like I said, get into fitness, get into nature. कोई छोटी सी ट्रिप आप कर लो. मन नहीं करेगा आपका. You will have to push yourself to do it, but you will have to do it. As time goes ना, you will realize कि वो एक phase था. देखो, nothing is bigger or more important than you, your life and your mental peace. आज मतलब 13 साल हो गए मेरे शादी को खत्म होके. व्हेन आई लुक बैक, आई फील कि यार, आई वेंट थ्रू सच अ बैड मेंटली एंड इमोशनली ट्राइंग फेज, बट नाउ इट इज जस्ट अ फेज फॉर मी. अब तो मुझे उन दिनों की डिटेल्स भी याद नहीं है, इफ यू ऑनेस्टली आस्क मी. सो यू जस्ट हैव टू बी स्ट्रांग एंड यू जस्ट हैव टू गेट योरसेल्फ आउट ऑफ दैट फेज इन दैट टाइम. और उसके लिए, लाइक आई सेड, आप ये सारी चीजें कीजिए. रीच आउट टू पीपल, स्पीक टू देम. इफ नथिंग एल्स, गो एंड सिट एट योर नेबर्स हाउस. डाइवर्ट करो माइंड. बाहर निकलो. आजकल तो इतने सारे
डेटिंग एप्स आ गए हैं. राइट. Find people on dating apps, not necessarily with the intention of dating someone, but just to make friends. Just reach out to people. आप अगर कहीं, if you're doing a job somewhere or whatever your line of work is, अपने colleagues के साथ discuss करो चीजें. But don't be alone. Being alone at home, being in that mental frame of mind, फिर आप खुद पे बहुत ज्यादा पिटी करने लगते हो. यू गेट इनटू दैट सेल्फ पिटी वाला जोन कि व्हाई इज दिस हैपनिंग विथ मी, मैं ही क्यों, क्या मतलब भगवान को मैं ही मिला था इसके लिए. सो you need to reach out to people, you need to get out of the house, you need to do these kind of things. And like you said, a divorce or a bad relationship, a bad marriage is equally destroying for the family also, because हम खास करके इंडियंस हम ये बोलते हैं ना कि हमारी शादी सिर्फ एक इंसान से नहीं हो रही है, उसकी पूरी फैमिली से हो रही है. So similarly, when your रिश्ता gets over also, आपकी families भी involved होती है. So it is very, very difficult for your family also to go through that. So I feel it is a cumulative effort. If you have a family, everyone should be with that person. कई बार मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, उन केसेस के बारे में सुना है जहां पे बंदे का डिवोर्स हुआ है या हो रहा है और वो फैमिली उसी को दोष दे रही है. अच्छा. उसी को ये कर रही है कि अरे तेरी वजह से हुआ, तूने ये गलती कर दी, गर्ल वाज वेरी नाइस, यू डिड दिस, यू फैक्ट वेट फॉर द पर्सन टू गेट आउट ऑफ दैट फेज, देन यू टेल हिम व्हाटएवर यू वांट टू टेल हिम. आप उसको सिखाना चाहते हैं सिखाइए, बट जस्ट लेट हिम गेट आउट, लेट दैट पर्सन get out of that phase, be there for that person. True. What do you have to say about men mental health? क्योंकि जैसा बचपन से बोला जाता है कि आप लड़के हो, आप स्ट्रांग हो, घर तो तुमको ही चलाना है, तो ये चीज़ कहाँ तक, being a male person of your family, only child, तो आपने इस चीज़ को अपनी लाइफ में कितना फेस किया, या अपने आसपास किसी में ये चीज़ आपने देखी, और क्या चीज़ आप सोसाइटी में ना चेंज करना चाहते हो कि यार ये मेंटल हेल्थ के लिए चीज अच्छी नहीं है, स्टॉप डूइंग दिस? हाँ, मतलब मुझे लगता है कि आजकल काफी डबल स्टैंडर्ड्स हो गए हैं सोसाइटी में. एक तरफ आप कह रहे हो विमेन्स इक्वालिटी, विमेन मेन की इक्वालिटी, पर एट द सेम टाइम आप सारा प्रेशर आदमी पे डाल रहे हो कि ही ओनली शुड अर्न एंड गेट फॉर द फैमिली, ही ओनली शुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फॉर द फैमिली. व्हाई? आई थिंक बोथ पार्टनर्स कैन डू इट. Today, I am at peace because I know I have a partner who is also working. Not that I would ever want to depend on her or sit at home and relax कि अरे वो कमा के लाएगी मैं खाऊंगा, वो thought भी गलत है. But I think it's a team effort. तो आज हम एक ऐसे दौर में हैं, आज हम एक ऐसी एक ऐसी लाइफ पैटर्न जी रहे हैं जिसमें I feel बहुत सारे घरों में मैं ये चेंज देख रहा हूँ, wherein the husband and wife both are equally doing things and keeping the family going. And I think that is most important for men's health, for a man's mental health. और मैं तो ये कहता हूँ कि यार मर्दों को ये चीज इतनी सीरियसली भी नहीं लेनी चाहिए. इतना ज्यादा अगर कोई आपको बिकर कर रहा है या आपको कोई बार बार ये कर रहा है कि अरे you are the only one who's supposed to do it, हाँ, you understand your responsibilities, but don't let it screw with your head. मतलब when I started off, I started off very early. I started off while I was in college. So I never went through that phase wherein my parents would tell me कि चलो बेटा आप कुछ करो, तुम्हें कमाना है. Fortunately, I started earning while I was still in college. And knowing my parents, they would have never done that to me. But हर घर ऐसा नहीं होता है, हर family ऐसी नहीं होती है. So I feel that for men's mental health, they need to, वो कहते हैं ना, don't take yourself so seriously also. Life में थोड़ा सा keep that scope for a little bit of enjoyment, a little bit of faith कि यार सब ठीक होगा, हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं. आप अपनी कोशिश पूरी तरह से करो, but don't let that mess with your head. I've seen relationship break हो रहा है सिर्फ इसीलिए कि अरे तुम्हारा तो काम ही अच्छा नहीं है, तुम तो बढ़ ही नहीं रहे हो आगे, तुम्हारा तो कोई ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, तो ओके आई एम लीविंग यू. तो आजकल ये दिस इज सो मच इन, आजकल ये फैशन हो गया है कि लोग ये सब चीज़ें इस लेवल तक जाते हैं. रुशाद, मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ में नहीं जाना चाहूँगी लाइक व्हाट हैपेंड टू यू, क्या रहा क्या नहीं हुआ,
बट इट्स अ वेरी जेनरिक क्वेश्चन. मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस चीज़ को फेस करते हैं, इवन गर्ल्स के साथ भी ये चीज़ अप्लाई होती है कि जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर अदर्स टू नॉट टू गेट इन्वॉल्व्ड. स्पेशली अगर हम लड़का लड़की की बात करें तो मैंने देखा है कि जहाँ लड़की की फैमिली बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग इन द सेंस कि बहुत इन्वॉल्व्ड है कि तुम इंटरफियरिंग. ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो. ऑल्सो फॉर गर्ल ऑल्सो कि गर्ल्स के मतलब उसको तो रहना है उस फैमिली में, तो वहाँ Correct. पे भी इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? भाई मेरी तो पहली मैरिज ही इसी वजह से खत्म हुई बिकॉज देयर वाज Okay. लॉट ऑफ इंटरफियरेंस फ्रॉम हर साइड. हाँ. हर पेरेंट्स, ओके. they were NRIs, they were not in this country. लेकिन वहां से बैठ के वो हमारी रिलेशनशिप अच्छा, वो यहाँ कंट्रोल रहते करते भी थे. नहीं. रहते भी नहीं था, Okay. फिर भी हमारी रिलेशनशिप वो लोग कंट्रोल करते थे. अच्छा. Especially my ex-mother-in-law. ओके. And I feel it is the worst thing to do to a relationship because आप constantly interfere कर रहे होते हो. उस वजह से आप अपनी चाइल्ड में वो सारे थॉट्स भरते हो कि यार योर हस्बैंड इज नॉट गुड इनफ, वो ठीक कमा रहा है नहीं कमा रहा है. हाँ. यार आपने शादी करवा दी ना हाँ. अपनी बेटी की, तो यू लेट देम लीड देयर लाइफ. हाँ, अगर मैं कोई ऐसा मतलब अय्याश किस्म का आदमी होता, हाँ. या इफ आई वुड हैव बीन एन अल्कोहलिक और इफ आई वुड हैव बीन अ वुमनाइजर, या फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, तब इंटरफियर करना बनता है कि भाई राइट. हमारी बेटी की हमने जिससे शादी की है दैट पर्सन इज नॉट राइट. तब आपका इंटरफियर करना बनता है. बट आप शुरू से इंटरफियर मत करो, स्पेशली व्हेन यू हैव दे यूज्ड टू लव मी, दे वर द वंस हु वर आफ्टर माय लाइफ टू गेट मैरिड टू हर. अच्छा. ओके. तो खुद सामने से हाँ, तो जब आपने अपनी बेटी का हाथ इस लड़के को सौंपा है, हाँ. आपने सब कुछ जांच परख के आपने सब कुछ किया है, आपने शादी करवाई है, हाँ. आपने सब कुछ किया है, तो भाई लेट द कपल लीड देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू व्हाट दे फील राइट ना. हमें हेल्प चाहिए होगी तो हम आप ही के पास आने वाले हैं, हम और कहाँ जाएंगे. राइट. माय पेरेंट्स इन स्पाइट ऑफ लिविंग इन द सेम सिटी नेवर एवर यूज्ड टू इंटरफियर. और उसको तो मेरी एक्स वाइफ को तो उनका प्रेजेंस अच्छा लगता भी नहीं था. She didn't like them so much. She had a problem. अगर मैं उनको जाके मिलता था, we were not even staying together. Okay. We were staying away because she didn't want to stay with my parents. Oh. So you see. So you did everything, रुशाद. आपने तो रिलेशन बचाने की हर चीज करी है. और I would say my ex relationship right from the word go ना, it was a disaster only. I wish I would have realize this back then. मतलब मुझे गट फीलिंग आई थी कि आई एम नॉट गेटिंग इनटू द राइट रिलेशनशिप. लेकिन फिर वो होता है ना कि माय पेरेंट्स टोल्ड मी, उन्होंने समझाया कि नहीं, थिंग्स विल गेट बेटर वंस द मैरिज हैपेंस, सब ठीक हो जाएगा. वो एक हमारे पेरेंट्स के जनरेशन का एक थॉट होता है. आज की तारीख में रिलेशनशिप्स, मैरिजेस आर वेरी डिफरेंट. एंड ये जो आपने बात कही कि लोग पार्टनर्स को छोड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर नॉट डूइंग वेल इन लाइफ, या उनका फेज गलत चल रहा है, फिर तो यार आप मैरिज के जो वाउज है, जो सेक्रेड वाउज है, उसी को आप ये कर रहे हो, डिफाई कर रहे हो. मतलब वो क्रिश्चियंस में एक वो लाइन बोलते हैं ना, फॉर बेटर और फॉर वर्स. उसका मतलब क्या है कि आई चूज यू टू बी माई वाइफ और आई चूज यू टू बी माई हस्बैंड. चाहे कुछ भी लाइफ कुछ भी हो जाए, कल को उठ के आप गॉड फॉरबिड आप बीमार हो गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप चल फिर नहीं सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल बैंक्रप्सी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है. ऐसे फेज में योर पार्टनर शुड स्टैंड बाय यू, बिकॉज अगर उस फेज में आप उस बंदे को छोड़ रहे हो तो इसका मतलब यू आर विद दैट पर्सन ओनली इन द गुड टाइम्स. जैसे ही बैड टाइम्स आए, आपको लगा चलो अभी कट लेते हैं भाई, इसका तो बुरा टाइम आ गया है, राइट. तो ये किस तरह की शादी हुई? फिर तो आप शादी करो ही मत. Then you just be in a relationship or you just live in with someone that it's easy to just walk out whenever you want to walk out. Then you don't enter into an institution like marriage, I feel. That's true. That's true. Rushad, what would you suggest to aspiring actors? And especially बहुत लोग ऐसे हैं कि जो सब कुछ छोड़ छाड़ के मुंबई बस आ जाते हैं. And then it's very heartbreaking कि 8-8 साल 10-10 साल लोग कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा है. So what would like to suggest? I would like to tell people कि first of all आप अपना base clear कीजिए, in the sense कि you need to understand why you want to become an actor. हाँ, आपकी
मौसी ने आपको बोला अरे तू तो बेटा ऋतिक रोशन लगता है, आपके फ्रेंड्स ने आपको बोला अरे तू तो शाहरुख खान लगता है, शाहरुख खान जैसा एक्टर है, तो चल अब मैं बैग उठाया, मैंने मुंबई निकल लिया हाँ, एक्टर बनने के लिए। वो गलत है। हम्म, यू नीड टू फील फ्रॉम विद इन दैट यू वांट टू बिकम एन एक्टर। हम्म, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो है, आपको अंदर से वो होना चाहिए कि मुझे एक्टिंग करना है, और उतनी जुनूनियत होनी चाहिए। व्हेन यू लिसन टू एग्जांपल्स लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी, किस तरह का स्ट्रगल उन्होंने Yeah. किया, बट ही बिकेम दैट सक्सेसफुल बिकॉज उनको अंदर से वो पता था कि वो एक एक्टर बनना चाहते हैं। मैंने उनके इतने सारे इंटरव्यूज देखे हैं, मैंने उनकी हाँ। ट्रेनिंग देखी है। सो देर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ डिसिप्लिन, लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो इन टू बिकम एन एक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वो आपके जहन में होना चाहिए कि मैं एक्टर क्यों बनना चाहता हूँ। हाँ, मुझे फेम चाहिए, पैसा चाहिए, सबसे पहले लोगों को यही हाँ, चाहिए। लड़कियां घुमानी है, अरे फिर तो लड़कियां इर्द गिर्द हमारे घूमेगी। लॉट ऑफ रॉन्ग रीजंस बिकॉज ऑफ विच पीपल वांट टू बिकम एन एक्टर। तो आई फील फर्स्ट आप अपना रीजन क्लियर कीजिए। यू बिकम एन एक्टर फॉर द राइट रीजन, फॉर द लव ऑफ द क्राफ्ट। आई एम स्टिल such a passionate actor because I love the craft. मुझे एक्टिंग से रिलेटेड हर एक चीज प्यारी है। The whole process of making a film or making a show or whatever it is, you should love that. Yes, fame is important. पैसा, नाम, शोहरत, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता कि मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूं। अगर मैं वो कहूंगा तो मैं मुझसे बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं है। हर कोई पैसे के लिए काम करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करता है, फेम के लिए काम करता है। आई मीन इवन आई लव इट व्हेन पीपल रिकॉग्नाइज मी, व्हेन दे क्लिक पिक्चर्स विद मी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अगर कहीं जाता हूँ और वो नहीं होता है तो मुझे लगता है अरे यहाँ किसी ने पहचाना नहीं, ऐसे थोड़ा सा ऐसे फील होता है। सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, बट दैट इज नॉट द ओनली रीजन व्हाई आई बिकेम एन एक्टर। सो आई वुड लाइक टू टेल पीपल, फर्स्ट बी क्लियर व्हाई यू वांट टू बिकम एन एक्टर। सेकेंडली, आप तैयारी करके आओ। बस बैग उठाया चल दिए ऐसा नहीं होता है। आप तैयारी करो, आप खुद पे तैयारी करो। कितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, सर वी वांट टू बिकम एन एक्टर, क्या करना चाहिए। फिर कुछ कुछ इतनी मतलब फेक एजेंसीज आजकल खुल गई हैं जो ऐसे लोगों को पैसों के लिए बुद्धू बनाते हैं। हाँ, इतना रजिस्ट्रेशन फी भर दो, हम आपको एक्टर बना देंगे, ये फिल्म में लॉन्च करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। women are asked to do the casting couch या जो भी है, all those things. So आप तैयारी के बिना आते हैं तो फिर यही होता है। You come prepared, you have to have some kind of contacts in the industry. कोई ना कोई आपका जानकार होना चाहिए जो आपको गाइड करेगा कि भाई आपको पोर्टफोलियो खिंचाना है, अपने फोटोज खिंचाने हैं। आजकल हर जगह कास्टिंग एजेंसीज आ गई हैं। कौन सी जेन्युइन कास्टिंग एजेंसीज है, उनको फोटोज भेजने हैं। तो कई बार अगर कोई रेफरेंस के थ्रू आता है तो मैं उन सबको गाइड करता हूं। आई हेल्प देम, आई गाइड देम, आई गिव देम नंबर्स। बट कितने ये बेचारे स्मॉल छोटे शहरों के लोग मुझे मैसेज करते हैं। आई जस्ट फील लाइक यार उनको गाइड करने वाला कोई होना चाहिए। आप सब लोगों को रिवर्ट हाँ. जितना मैं जानती हूँ मुझे लगता है आप करते हो। हाँ, मैं करता हूँ। okay. मैं करता हूँ। जहां तक हो सकता है मैं करता हूँ। यस, आई रिवर्ट टू ऑल ऑफ देम। एंड जितना हो सकता है मैं हेल्प भी करता हूँ। सो या, कमिंग बैक टू द आंसर, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई यू वांट टू बिकम एन एक्टर. You need to come with a lot of tayari. You need to be ready. You need to have some kind of financial backing with you. ताकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ आके आपको स्ट्रगल करना है. राइट, एकदम काम नहीं मिलेगा. कुछ लोगों को मिल भी जाता है, लेकिन आप यही सोच के आइए कि आपको कुछ महीने आपको रगड़ाना है. And those months can turn into a year. It can turn into 2 years. And yeah, I also want to tell people is that आप खुद को एनालाइज कीजिए. आप खुद को एनालाइज कीजिए कि आपको काम क्यों नहीं मिल रहा है. आपको काम इसलिए नहीं मिल रहा है बिकॉज आप इतने अच्छे एक्टर नहीं हैं, या आपको काम इसलिए नहीं मिल रहा है कि चलो क्लाइंट ने ब्रीफ चेंज कर दिया, या आज उनको एक गोरा लड़का चाहिए लेकिन आप थोड़े से वीटिश है, तो इस वजह से आपको काम नहीं मिला. बट इफ यू कीप
गेटिंग टू नो, आप अगर लोग आपको बोल रहे, अगर कोई ऑनेस्टली आपको बोलता है कि भाई तेरा यू आर नॉट अप टू इट, तू कुछ और कर ले लाइफ में, तो समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक यू शुड लिसन टू दैट। आपको खुद को एनालाइज करना चाहिए। लाइक आई वॉज वेरी क्लियर बिफोर आई डिड हिप्पोपोरे, आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं खुद को 1 साल दे रहा हूं। अच्छा, अगर 1 साल में मेरा कुछ नहीं हुआ तो आई विल देन ट्राई एंड डू अदर थिंग्स इन लाइफ। बट लकीली 1 ही साल में मुझे हिप्पोपोरे मिला, माई एक्टिंग जर्नी स्टार्टेड, आई रियलाइज दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज व्हाट आई फील लाइक डूइंग, एंड मैंने वो चीज की। सो या दीज थिंग्स, आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। और खुद, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यू नीड टू बी समवन हु इंट्रोस्पेक्ट्स। अपने अंदर जाकर आप शांति से बैठ के आप गेज कीजिए कि भाई कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, आपकी फीलिंग आपको क्या बोलती है। जस्ट बिकॉज 10 लोगों ने बोला कि आप ऋतिक रोशन जैसे दिखते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ऋतिक रोशन की तरह बड़े स्टार बन जाएंगे, और जरूरी नहीं है कि लोगों को दूसरा ऋतिक रोशन चाहिए भी नहीं। करेक्ट, we already have one. correct. So I think these things are something which Very need important. to people need to keep in mind. Very helpful, thank you so much. मैं लास्टली ये पूछूंगी एक सिंपल लैंग्वेज में कि किसी को शौक है एक्टिंग का, उसके अंदर टैलेंट भी है, तो टीवी सीरियल मिलता कैसे है, क्या प्रोसेस होता है? आजकल लाइक आई सेड, चाहे वो टीवी सीरियल हो, एड्स हो, वेब सीरीज हो, मूवीज हो, आजकल एक बहुत क्लियर फंडा हो गया है। बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं इंडस्ट्री में। आज हर प्रोडक्शन हाउस के खुद के कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है। जो लोग पोर्टफोलियो का मतलब नहीं जानते हैं, पोर्टफोलियो मींस आपके फोटोग्राफ्स, अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स आपको खिंचाने हैं, अलग अलग लुक्स में खिंचाने हैं। लेकिन माइंड यू, कुछ लोग ऐसे पोर्टफोलियोज खिंचाते हैं कि जब पर्सनली लोग उनको देखते हैं तो पहचान ही नहीं पाते हैं। Right. इतना भी ज्यादा हाँ. मेकअप, ये वो जय जू मत कीजिए। हाँ. आप ट्राई एंड बी योर सेल्फ, ट्राई एंड शो व्हाट यू आर। उस तरह के फोटोज खिंचाइए और आप कास्टिंग डायरेक्टर्स को अप्रोच कीजिए। आजकल सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स इंस्टाग्राम पे उनके पेजेस हैं। बड़े से बड़े मुकेश छाबड़ा हो गए, कास्टिंग बे है, बड़े से बड़े कास्टिंग पोर्टल्स हैं, शानू शर्मा, ऑल ऑफ देम आर ऑन इंस्टाग्राम टुडे। उनके पेजेस हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, वो डेली रिक्वायरमेंट्स डालते हैं। अगर आप उस रिक्वायरमेंट में फिट होते हैं, उस नंबर पे या उस मेल आईडी पे अपने फोटोग्राफ्स भेजिए, वो लोग आपको ऑडिशन के लिए बुलाएंगे। इफ यू फिट द बिल, इफ यू फिट द एज ग्रुप, लुक, पर्सनैलिटी टाइप, वॉट एवर इट इज, आपको ऑडिशन के लिए बुलाएंगे। आप ऑडिशन दीजिए, गिव इट योर बेस्ट, एंड देन सी हाउ इट गोज। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल पीपल, प्लीज टेक योर ऑडिशंस वेरी सीरियसली। आप ऑडिशंस बेमन से मत कीजिए। Okay. आप ऑडिशंस को सीरियसली लीजिए, पूरी शिद्दत के साथ आप वो ऑडिशन कीजिए, बिकॉज यू नेवर नो, वो ऑडिशन आपको शायद वो काम नहीं दिला सकता है, नहीं दिलाएगा, बट कहीं से किसी ने आपका वो ऑडिशन देख लिया और उनको लगा रहे यार ये इसमें तो फिट नहीं बैठता, उसको मैं इसके लिए बुलाता हूँ। कई एक्टर्स के साथ हुआ है। अच्छा. मेरे साथ कई बार हुआ है। Really? Okay. So I have not sometimes been locked for that particular part that I'm auditioning for, but they feel अरे okay नहीं, इसको इसमें डालते हैं। तो give your audition with lot of sincerity. You know, काम तो आपको इस sincerity के साथ करना ही है। आपको once वो प्रोजेक्ट मिलता है, you have to do it with all your sincerity, dedication, discipline, हर एक चीज। बट आप ऑडिशन भी उतनी ही शिद्दत के साथ दीजिए, then the chances of you getting that project वो बढ़ जाता है। आपने बेमन से कैसे भी कैमरा रख के, कुछ भी कपड़े पहन के, कैसी भी लाइट में अपने आप को खुद को शूट कर लिया, एंड आपने भेज दिया, एंड देन यू ब्लेम देम कि यार मुझे तो कोई बुलाता नहीं है। वो भी नहीं होना चाहिए। यू हैव टू गिव इट योर बेस्ट, एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑडिशन। लवली। रुशाद, आपका कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड फैन मोमेंट रहा है कि अभी तो मुझे लग रहा है कि यहाँ को आनी मुझे पहचान रहा होगा, एंड देन वहाँ पे ऐसा कोई फैन इंटरेक्शन हो जाए, या कुछ डिफरेंट सा फैन का कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। साउथ में मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरे फैंस होंगे। हाँ, ओके। बट आई हैड गॉन टू, कहाँ गया था मैं कोची गया था एक फिल्म की शूट करने के लिए। ओके। एंड आई सॉ अ लॉट ऑफ फैंस एट द एयरपोर्ट
coming अच्छा. to me, clicking pictures with me. और सब लोग जानते हैं कि साउथ की ऑडियंस इज वेरी साउथ ओरिएंटेड, दे वॉच ओनली देयर कंटेंट. हाँ. तो तब मैंने इनफैक्ट फिर एक और कोई आया था मेरे से फोटो खिंचवाने, एंड आई आस्क्ड हिम, आई सेड हाउ कम यू नो मी, बिकॉज आप तो सारे साउथ के अपने लैंग्वेज में आप सीरियल्स देखते हैं. तब पता चला कि लॉट ऑफ सीरियल्स दैट वी डू आर आल्सो बीइंग डब्ड and being shown over there. So that was one unexpected thing. Recently, my wife and I, we had gone to Greece for her best friend's wedding. तो वहाँ भी Indians मतलब मिल गए who recognized me, clicked pictures with me, which I was not expecting. So है ऐसे काफी unexpected moments रहे हैं. और आपके ऐसा फैन मोमेंट जो आप एडमायर करते हो बॉलीवुड के लोगों को, जैसे अभी आपने ऐसा के का एक्सपीरियंस बताया, आपके आसपास ऐसे हुआ हो कि आपने अमिताभ बच्चन को भी देखा या काम किया था, तो यू गॉट द इंटरेक्शन आल्सो? आई नेवर हैड अ चांस टू स्पीक विद हिम. अच्छा. आई ओनली लाइक आई हैड दैट वन शॉट विद शाहरुख इन द फिल्म. आई हैड वन शॉट लाइक दैट. सो यू सॉ अमिताभ सर लाइक दूर से? नहीं, मेरा एक बाकायदा एक शॉट था उनके साथ फिल्म में, जहाँ पे वो एक सीन में हम पूजा के लिए हैं और वो प्रसाद बांट रहे हैं. आई वाज द लास्ट पर्सन इन द लाइन टू रिसीव प्रसाद फ्रॉम हिम, एंड वो एक प्रॉपर शॉट है फिल्म में रखा है उन्होंने. बट आई नेवर गॉट अ चांस टू टॉक टू हिम ऑल्सो, बिकॉज एट दैट टाइम ना आई वाज अ वेरी शाय, थोड़ा सा सहमा हुआ सा पर्सन, सडनली थ्रोन इनटू दिस बिग फिल्म. यू नो, आई डिडंट नो. आज अगर मुझे मौका मिले तो आई कैन गो अप टू एनी स्टार एंड टॉक टू दैट पर्सन. आई फील आई हैव दैट ओपननेस इन मी टू वॉक अप टू एनीबडी एंड टॉक टू दैट पर्सन. बट उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड शाय किस्म का इंसान था, तो आई नेवर एक्चुअली हैड अ कॉन्वर्सेशन विद बच्चन सर. बट आई थिंक my all time fan moment will be what I have experienced with Shahrukh Khan. और कोई बॉलीवुड इंटरेक्शन आपका? Well, during the premiere of Veer Zara, Anil Kapoor sir was very, very kind and met me very warmly. And I have always been a very big fan of him. तो उनसे 2-4 मिनट बातें हुई. Bobby Deol, while doing Ashram, kind of recognized me, said, हाँ तेरा तो काम देखा है मैंने. His staff was very fond of me and he was such a kind human being. मतलब अभी तो मैं बस होटल में लैंड हुआ हूँ, मैंने अपने रूम में अपना सामान रखा है. And another actor and a friend, Sachin Shroff, who was a part of Ashram, he had done season 1 और मैं season 2 के लिए गया था. तो he made me introduce Bobby sir, and Bobby was like, you're the guy who I'm going to kill. I'm like, yes sir, you are the guy who you are going to I'm the guy who you are going to kill. And immediately they were all meeting up for dinner. So he was like, chal, have dinner with us. And I was very new in that team. मैं किसी से मिला नहीं था, किसी के साथ हमारी ना तो रीडिंग हुई थी ना कुछ. I only knew Sachin because I've known him for a very long time. And Bobby sir was very gracious enough to ask me and join him and the entire team for dinner. तो यार these kind of small things really मतलब वो ज़हन में रह जाते हैं. These small acts of kindness really stay back with you. And then आपका भी mindset होता है कि मुझे भी ऐसा ही kind बनना है और मुझे भी इसी track पे. Of course. Like I said initially, only because of being a part of a film like Mohabbatein, then later on Veer Zara, and seeing all these wonderful legends being so nice to everyone, you learn these things. आप ये चीजें सीखते हैं. Wonderful. Thank you so much, Rushad. Thank you so much for sharing your experience. और आपने हमारी audience को भी बहुत कुछ सिखाया. I'm glad. Thank you so much. Most welcome. Thank you.